السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ریاست تلنگانہ میں سیاسی ماحول گرم ہو گیا ہے۔ انتخابات قریب آتے ہی BRS رہنماؤں کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق انتخابی فلائنگ سکواڈ نے موتی نگر کے علاقے میں سابق رکن اسمبلی مرری جناردھن ریڈی کے گھر پر چھاپا مارا۔ اسی طرح کوکٹ پلی کے KBSP کالونی میں MLC توکلا پلی رویندر راؤ کی رہائش گاہ پر بھی کارروائی کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کانگریس لیڈر ریونت ریڈی اقتدار کے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے BRS رہنماؤں کو انتخابی مہم سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ BRS قائدین نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ جب متعلقہ علاقے میں انتخابی ضابط اخلاق نافذ نہیں ہوا تو پولیس کو ان کے گھروں میں داخل ہونے کا کیا حق ہے۔ BRS رہنماؤں نے ان چھاپوں کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ ایڈوکیٹ راما راؤ نے کہا ہے کہ حیدرآباد پرانے شہر کی تاریخی عمارت علی لاج کے تحفظ کے لیے تلنگانہ ہائی کورٹ میں PIL ریونت ریڈی کی کانگریس حکومت ترقی کے نام پر مسلمانوں کے مذہبی عمارتوں کو مٹا کر ان کی شناخت ختم کر رہی۔ دیکھیے ایڈوکیٹ راما راؤ کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ جو فیز 2 کا چل رہا ہے ابھی آپریشنل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تو اس میں تھوڑے پراپرٹیز ایکوزیشن کرنے کے لیے پرپوزل لگائے تھے۔ تو نارملی پراپرٹیز ایکوزیشن کریں گے تو یہ پراپرٹیز جو بھی ہے، جتنے بھی پراپرٹیز لے رہے ہیں وہ پورے سارے کافی سارے پراپرٹیز 90% ان پراپرٹیز مسلمانوں کے پہچان ہے۔ یہ پراپرٹیز جیسا آپ کو علی آباد سرائے سے سٹارٹ کر کے بیچ میں آپ کو دارالشفا ایک مسجد بھی مسجد کو بھی شہید کر دیں گے، تو پرپوز کرے کہ وہ مسجد بھی لے لیں گے، اور مغل پورا ٹامز ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو پرنسز ایسن وومنز ایجوکیشن سینٹر جیسا آپ کو پرانا نظام میوزیم کے بازو میں، پرانے شہر میں نظام میوزیم کے بازو میں دکھے گا ہے، اور اس کے بعد میں ازا کا زہرا ہے۔ یہ سارے کافی سارے پراپرٹیز افیکٹ ہوئے، جیسا علی لاڈج ہے، اس میں اس بیچ میں علی لاڈج ہے، ہم ایک پرسنل کیس بھی لڑ رہے ہیں علی لاڈج کی طرف سے۔ اس میں یہ سارے پراپرٹیز میں ہم نے جن ہت یاچیکا پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ایک فائل کرے تھے، اور پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا آج سنوائی تھا۔ یہ چیز جیسا تلنگانہ جاگرتی کی صدر کلوا کنٹلا کویتا نے چیوڑلہ بس حادثے کے متاثرین کی عیادت کی جو زخمی ہوئے تھے اور چیوڑلہ کے PMR اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے ان سے فراہم کی جانے والی طبی خدمات کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ انہوں نے ڈاکٹروں کو مشورہ دیا کہ وہ متاثرین کو بہتر طبی خدمات فراہم کریں۔ حیدرآباد جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے ایک حصے کے طور پر ایراگڈہ ڈویژن کانگریس پارٹی مہم چلا رہی۔ ریاستی حکومت کے وزیر آدی سنواس نے نور مسجد میں انتخابی مہم کے دوران جوبلی ہلز کانگریس پارٹی کے امیدوار نوین یادو کے ساتھ انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے کہا کہ اس مہینے کی 11 تاریخ کو ہونے والے انتخابات میں کانگریس پارٹی کے امیدوار نوین یادو کو بھاری اکثریت سے جتائیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں تمام شعبوں میں ترقی ہوگی۔ پچھلی حکومت نے ریاست کو قرضوں میں ڈھیر میں بدل دیا۔ اگر جوبلی ہلز حلقے کی ترقی کرنا ہے تو ہاتھ کے نشان پر ووٹ دیں اور انہیں کامیاب بنائیں۔ نوین یادو کی جیت ہر خاندان کے لیے انصاف، نوجوانوں کے لیے موقع اور جوبلی ہلز کی ترقی کو تیز رفتاری سے جاری رکھنے کا راز تھا۔ نوین یادو کئی سالوں سے غریبوں کے لیے امدادی پروگرام کر رہے۔ حکومت BCs کو 42% ریزرویشن دے رہی۔ تحفظات کو نافذ کرتے ہوئے قانون پاس کیا گیا۔ دلت، کمزور طبقات اور اقلیتیں کانگریس پارٹی سے اپیل کر رہی کہ وہ نوین یادو کی حمایت کریں اور انہیں جتوائیں، ہاتھ کے نشان پر اپنا قیمتی ووٹ ڈالیں اور نوین یادو کو جتوائیں۔
आप 2 नंबर पे दबाना है, आजाद से जिताना है, आपके आपके घर वालों की भी जिम्मेदारी लेना है। देखिए साहब, थोड़ा रास्ता छोड़ दो साहब, थोड़ा 12 तारीख के दिन 2 नंबर पे दबाना है। देखिए साहब, इंशाल्लाह जिताना है। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में तेलंगाना कैबिनेट मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन, तेलंगाना गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर और टिमरीज के चेयरमैन फहीम कुरैशी ने नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम को कांग्रेस एमएलए कैंडिडेट को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की है और कहा कि 11 नवंबर को कांग्रेस के निशान हाथ पर वोट दें और कांग्रेस को मजबूत बनाएं। क्योंकि दूसरी जगह भी मुझे जाना है, और लेकिन एक बात ये कहूँगा कि पहली बात ये रहेगी कि मैं पूरे जितने भी मीनाक्षी मैडम, महेश सर और हमारे रेवंत रेड्डी साहब हैं, उन्होंने जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो माइनॉरिटी की, तो मैं उसको पूरा अच्छी तरह से उसको काम में ले आऊँगा। और मेरा जो भी स्पोर्ट्स में जितना भी एक्सपीरियंस था बिल्कुल अलग है, और माइनॉरिटी ये पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है, बट जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोग के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ और यहाँ पे बिल्कुल काम होगा। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, श्रीधर बाबू साहब, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए, लॉयर, लेक्चरर्स, कांस्टेबल्स पूरे ज्यादा मिल रहे हैं। इसका जैसा बोलते थे ना पुराने, अरे हर बीमारी की दवा जिंदा तिलिस्मान, वैसा ये 4% मुस्लिम रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन में हम हारते गए, मगर वो क्यों हारे? यही हारे कि भाई तुम्हारा डाटा कहाँ है, आपके पास सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड मुसलमान कहाँ है, आपका डाटा कहाँ है? इसमें हमने 3 दफा हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, अब स्टे पे चल रहा। लेकिन ये सरकार रेवंत रेड्डी साहब का बहुत बड़ा काम है। भारत देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर कोई रियासत में हमारा डाटा नहीं है, मुसलमानों का डाटा है तो सिर्फ तेलंगाना के अंदर डाटा है कि कितने मुसलमान इस रियासत के अंदर है। तो उससे मालूम हुआ कि 12.58% मुसलमानों की आबादी है। उसके बाद पिछड़ापन कितना है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड 10.8%। ओल्ड सिटी मेट्रो एमजीबीएस से फलकनुमा तक मेट्रो अलाइनमेंट पर कोर्ट का फोकस, हेरिटेज साइट पर क्या असर? हैदराबाद मेट्रो फेज 2 एमजीबीएस से फलकनुमा तक की अलाइनमेंट पर अब तेलंगाना हाई कोर्ट का बड़ा फोकस आ गया है। कोर्ट ने मेट्रो अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया है कि कंप्लीट रूट स्केच कोर्ट में पेश की जाए, जिसमें चार मीनार, फलकनुमा पैलेस, पुरानी हवेली, इमाद मस्जिद और दूसरी हिस्टोरिकल जगहों का असर डायरेक्टरी दिखाना होगा। पिटीशन में डिमांड की गई है कि इन साइट को नुकसान से बचाया जाए। कोर्ट ने हेरिटेज प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी दी है। मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में अब लीगल हर्डल्स बढ़ गए हैं। सबसे फ्रेश अपडेट, पब्लिक कंसर्न और लीगल रिएक्शन बताए गए हैं। हैदराबाद मेट्रो फेज 2 इन कोर्ट हाई कोर्ट ऑर्डर्स फुल अलाइनमेंट स्केच फोकसिंग ऑन impact to Charminar places, mosque will heritage survive metro expansion, get all the legal public and authority reactions। बिहार असेंबली इंतखाब के पहले मरहले की वोटिंग के बाद महागठबंधन की जानिब से नायब वज़ीर आला के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने पटना में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि नौजवानों और खवातीन ने बड़े पैमाने पर महागठबंधन के हक में वोट दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार के नौजवान रोजगार के मसले पर एनडीए से नाराज हैं और उन्होंने इस बार महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दिया है। इनके मुताबिक नौजवान ये समझ चुके हैं कि रियासत में बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह एनडीए की हुकूमत है, इसलिए वो तब्दीली चाहते हैं। मुकेश सहनी ने कहा, अब बिहार के नौजवान फैसला कर चुके हैं, वो महागठबंधन के साथ हैं और रियासत में 14 नवंबर को हमारी हुकूमत बनने वाली है। एनडीए के दावों पर तंज करते हुए मुकेश सहनी ने कहा, अगर एनडीए के लोग 2-4 दिन खुश रहना चाहते हैं तो रहने दीजिए, उनके पास खुशी के सिर्फ चंद दिन बचे हैं, इसके बाद वो बिहार की सियासत में नजर नहीं आएंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि अभी उनके पास वक्त है, चाहे तो जश्न मना लें, पटाखे फोड़ लें, मिठाइयाँ बांट लें, लेकिन 14 नवंबर को महागठबंधन ही हुकूमत बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते वाकयात पर सख्त रवैया अपनाते हुए 3 अहम अहकामात जारी किए। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया है कि रियासतें एमएक्स केवरी की रिपोर्ट पर फौरी अमल करें और अपने हलफनामे दाखिल करें। अदालत ने कहा है कि आवारा जानवरों खुसूसन कुत्तों और मवेशियों को सड़कों और शाहराहों से हटाया जाए और उन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाए ताकि अवाम की जान और माल की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। पहले हुक्म में अदालत ने कहा कि रियासती हुकूमतें एमएक्स केवरी की सिफारिशात पर अमल दरामद करें और अपनी पेशरफ्त की रिपोर्ट अदालत में पेश करें। दूसरे हुक्म में अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले को पूरे मुल्क में नाफिज करने का हुक्म दिया, जिसमें सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने और उन्हें शेल्टर होम में रखने की हिदायत दी गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस पेट्रोलिंग टीमें तश्कील दें जो 24 घंटे निगरानी करे ताकि सड़कों पर कोई आवारा जानवर ना दिखे। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी हुक्म दिया गया ताकि शहरी फौरी शिकायत दर्ज कर सकें। वादी कश्मीर में सर्दियों ने अपनी मुकम्मल दस्तक दे दी है। वादी के बेशतर इलाकों में रवां सीजन की सबसे सर्द रात रिकॉर्ड की गई, जिसके साथ ही लोगों ने गर्म मलबूसात, हीटर्स और रिवायती कांगड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो रवां मौसम सरमा की अब तक की सबसे सर्द रात है। महकमे ने बताया कि मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में पारा -3.0 डिग्री, गुलमर्ग में -2.6 डिग्री, कुपवाड़ा में -0.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में साफ मौसम के सबब रात के दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट आई। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद रोज के दौरान सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के है, क्योंकि रवां हफ्ते के आखिर तक मगरिबी हवाओं का कोई नया सिस्टम मुतवक्के नहीं। सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही वादी भर में जिंदगी के मामूलात पर भी असर पड़ने लगा है। श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल और जनूबी कश्मीर के बेशतर इलाकों में सुबह के औकात में सड़कों पर हल्की धुंध छाई रहती है, जबकि झील डल के किनारे सुबह सवेरे लोगों को धूप सेंकते और कांगड़ियों में कोयले सुलगाते देखा जा सकता है। श्रीनगर शहर में दुकानदारों ने गर्म मलबूसात, जैकेट्स, दस्ताने, मफलर और कांगड़ियों की फरोख्त बढ़ा दी। लाल चौक, महाराजा बाजार और डल गेट के बाजारों में इन दिनों खरीदारों का रश बढ़ने लगा। एक दुकानदार मोहम्मद शफी ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से अचानक ठंड में इजाफा हुआ है और लोग अब गर्म कपड़ों और कांगड़ियों की खरीदारी में मसरूफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बहन अलीमा खान इस वक्त कानूनी मुश्किलात में घिरी हुई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ATC ने उनके खिलाफ 8वां गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनके तमाम असासों की मुकम्मल तफसील तलब की है। IANS ने मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि अलीमा खान के खिलाफ सादिकाबाद पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें उन पर हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत, तोड़फोड़ और पथराव के इल्जामात आयद किए गए। अदालत ने इस केस की समाअत के दौरान 8वीं बार गैर जमानती वारंट जारी किया। ज़राए के मुताबिक अदालत ने सिर्फ वारंट ही नहीं बल्कि दारुल हुकूमत के तरक्याती इदारे के चेयरमैन और इस्लामाबाद के कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा को हिदायत दी कि वो अलीमा खान की मलकियत में मौजूद तमाम जायदादों की तफसील फौरी तौर पर अदालत में पेश करे। इसके अलावा अदालत ने पाकिस्तान के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन आकिफ सईद को भी हुक्म दिया कि अलीमा के नाम पर रजिस्टर्ड किसी भी कंपनी या हसस की तफसीलात फराहम की जाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अंदिया दिया है कि वो अगले साल हिंदुस्तान का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भरपूर तारीफ करते हुए उन्हें अपना करीबी दोस्त और एक अजीम शख्सियत करार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इंतहाई मुस्बित सिमत में आगे बढ़ रहे और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती बातचीत तसल्ली बख्श मरहले में है। व्हाइट हाउस में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ट्रंप से हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हम अक्सर बात करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं हिंदुस्तान आऊँ, हम इस पर काम कर रहे हैं और मैं यकीनन आऊँगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक अजीम इंसान है। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ये दौरा अगले साल मुमकिन है। इस पर ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। उन्होंने अपनी साबिक़ा दौरे हिंद को याद करते हुए कहा कि 2020 में वज़ीर-ए-आज़म के साथ मेरी बहुत शानदार मुलाकात और यादगार सफर रहा। हिंदुस्तानी अवाम का जोश व जज्बा नाकाबिले फरामोश है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.